Hello, welcome back once again in Fundamentals of ICT subject. So we were in the second chapter of this subject, that is understanding the Microsoft Office Word. So in the last lecture we have completed till the topic of working with tables. In that lecture we have seen how to insert a table and how to adjust the different properties and working with the help of table. So under that lecture we have seen how to resize the table size, align the text in table, format of table, how to insert extra rows and columns in the table, how to do the borders and shading of the cells inside the table. So, and also important thing, we have seen how to merge the cells and splits the cells into rows and columns, how we are able to split the cells. So all these things we have seen in our last lecture. We have completed till the second last topic of this chapter. Today we are going to end this particular unit working with Microsoft Word with the help of this last topic remaining, working with column layouts and section breaks. So this is the last topic remaining in this particular chapter, in this particular unit, and today we are going to see it also and going to end this chapter. Now I am opening the same file which we have seen in the last lecture of our Microsoft Office Word. So this is the file which we are working on it, and we had done the part of inserting the tables under this document. In the last lecture we have inserted this table and seen how to change the alignment, how to edit the text inside the table, how to give the bordering shading inside the cell of this table, how to adjust its size with the help of this cursor. Now today we are going to see some more important things related with this particular working with this table. As you click on this table, once you click on this table, you are able to see the two options available to you related with this table. The heading given to you is table tools. Means what? Once you click on table, you are getting these two extra options exclusively related with these tables. First one is design option and the second one is layout option. If I am not clicking on the table, you are not able to see these two options. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? दो ऑप्शन नजर आते क्या? नहीं आते. जब मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, सर कौन से दो ऑप्शन? हाँ, दो ऑप्शन कौन से सर? ये दो ऑप्शन ये आपको इधर पे नजर आएंगे. एक डिजाइन वाला ऑप्शन है और एक दूसरा लेआउट वाला ऑप्शन है. ठीक है, जैसे ये टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यानी जो टेबल जो बना हुआ है, जो ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर इस टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक डिजाइन और एक लेआउट वाला ऑप्शन नजर आएगा. अब क्या होता है डिजाइन के अंदर, क्या होता है लेआउट के अंदर, अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. तो जब मैं डिजाइन वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, तो डिजाइन वाले ऑप्शन में क्लिक करके ना मुझे टेबल के अलग अलग डिजाइन्स नजर आएंगे जो बेस्ट सूट करेगा हमारे डॉक्यूमेंट के लिए. ये तो अभी एक सिंपल सा फॉर्मेट वाला टेबल हो गया. जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में आपको टेबल भी अच्छा थोड़ा रिप्रेजेंट कराना होता है, हाईलाइट कराना होता है, दिखाने का होता है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिज़ाइंस, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, ये डिज़ाइन अलग अलग कलर के डिज़ाइन के पैटर्न में आपको एक, तो ये सिंपल जो आपका नॉर्मल टेबल है, फर्स्ट ऑप्शन वही है. दूसरा, यहाँ पे देखो पैटर्न में आपको दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में आपको नजर आएंगे. तो ये सब पैटर्न्स वाले डिज़ाइन कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग कोई अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, कुछ अच्छा टाइप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से हाईलाइट कराने के लिए ये सारे ऑप्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सिलेक्टिंग दिस, सो इस तरीके से ये मैनर में उसके फॉन्ट वगैरह, स्टाइल वगैरह भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. इस तरीके से इसका स्टाइल, फॉन्ट वगैरह सब क्या हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा. इस तरीके से आपको नज़र आएगा, फॉर्मेट नज़र आएगा. सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस के हिसाब से जो तुमको डिज़ाइन अच्छा लगेगा, या इसके अलावा भी तुमको और कोई पैटर्न देखना है, कोई अच्छा देखना है, तो आप अच्छी तरीके से उसको दे सकते हो, डिफाइन कराना है. तो विच एवर द पैटर्न यू लाइक,
यू लाइक मोस्ट, तो गिव दैट पैटर्न, वो पैटर्न का टेबल आप दे दो। तो इससे क्या है कि आपका फॉर्मेट जरा अच्छा दिख जाएगा, टेबल्स के ऑप्शन जो लिखे हुए रहेंगे वो बहुत अच्छा दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट अच्छा तरीके से प्रिपेयर होगा। तो एक ये तो डिज़ाइन में था, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से शेडिंग वगैरह का भी दिया हुआ है। शेडिंग मतलब कलरिंग वगैरह, जो हिसाब से आपको सेल को कलर देना है, ये पहले भी बता चुका था मैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कलर में आपको नजर आएगा, शेडिंग में नजर आएगा। बॉर्डरिंग के लिए जो बाहर की बॉर्डरिंग वगैरह जो करना है, बॉर्डर देना है कि नहीं देना है, कौन से सेल तक बॉर्डर देने हैं, बॉर्डरिंग करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ इधर पे दिख के आएगा, इधर पे समझ में आएगा आपको यहाँ से। इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ इतना चीज़ नहीं थी, बस आपको इधर पे शो कराना था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेबल स्टाइल्स अवेलेबल है। उन टेबल स्टाइल्स में आपको जो अच्छा लगता है, जो बेटर लगता है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो आप चीज़ को इधर पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। या नहीं चाहिए तो आपको नॉर्मल ग्रिड टाइप नहीं कर दो, तो ये आपका नॉर्मल ग्रिड टाइप में टेबल बना हुआ रहेगा जैसे बना हुआ आता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ ये समझाने की थी, अब इसी में टेबल्स टूल्स में जो दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन सा है, लेआउट का है। और जैसे मैंने लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल नज़र आएंगे आपको। तो ये सारे जो ऑप्शंस है ना, वो टेबल से ही रिलेटेड है। जो टेबल आपने इंसर्ट किया है उस टेबल से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस आपको इधर पे दिखेंगे। अब इन ऑप्शंस में क्या क्या है वो देखो। जैसे कि आपको कोई डिलीट करना था तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, को इंसर्ट करना है, रो को एक्स्ट्रा रो आपको डालना है, रो वाला है इंसर्ट रो। इंसर्ट रो अबव यानी ऊपर की तरफ रो आपको डालना है, इंसर्ट रो बिलो यानी नीचे की तरफ रो आपको डालना है, इंसर्ट लेफ्ट यानी कॉलम आपको लेफ्ट में आपको एक इंसर्ट करना है, इंसर्ट राइट यानी आपको कॉलम को राइट में इंसर्ट करना है। तो ये रोज एंड कॉलम्स के ऑप्शंस आपको इधर पे दिखेंगे, नजर आएंगे। ये चीज़ मैंने ना लास्ट लेक्चर में भी आपको एक दूसरे तरीके से बताया था, समझाया था। जस्ट मैंने क्या बोला था कि जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा रो वगैरह इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वो रो पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। जैसे इंसर्ट का ऑप्शन पे जाएंगे तो इंसर्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। तो ये सारी चीज़ आपको इधर पे नज़र आएगी, दिखेगी। तो एक तो राइट क्लिक करके भी आपके पास सामने ऑप्शंस अवेलेबल थे, या नहीं तो आपको ये सारे ऑप्शंस और कहाँ पे दिखेंगे, लेआउट में जाके दिखेंगे। लेआउट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ इधर पे दिखेगी। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इंसर्ट रो अबव, यानी रो अबव का मतलब ये 3 वाले नंबर के ऊपर कोई रो आपको इंसर्ट करना है, तो ये क्लिक कर दो तो 3 के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट होकर नजर आएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई नीचे की तरफ कोई रो को इंसर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल 1 के नीचे कोई एक एक्स्ट्रा रो आपको डालना है, पुट करना है, तो इंसर्ट रो बिलो, तो एक नीचे की तरफ रो आपको इंसर्ट हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो इससे क्या है कि आपको ये ऑप्शंस पे जाने की वजह से, अगर फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल नंबर ऑफ रोज चाहिए थी, ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो राइट क्लिक पे क्या करना पड़ेगा, हर बार जाओ, हर बार जाके उस पर क्लिक करो, पीछे करो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ गया, अब जितनी बार आपको जितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए जस्ट क्लिक करते हो, फटाफट आपके पास ऐड होते चली जाएगी। इससे क्या है कि आपको 1 क्लिक में ही खाली कंटिन्यूसली आपकी ऐड होते चले जाएगी, इंसर्ट होते चले जाएगी। तो आपको बार बार वो राइट क्लिक करके वो ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बेनिफिट है अगर आप ये लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे। सर एक और बताओ ना। हाँ, तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि सबसे पहले तो जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट के। डिज़ाइन वाला तो बता चुका, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के डिज़ाइन जो आपको टेबल को सिलेक्ट करना होता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा भी लेआउट के बारे में बता रहा था। लेआउट के बारे में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो इंसर्ट में आपको इधर पे ऑप्शंस नजर आएगा, रोज एंड कॉलम्स रिलेटेड, इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रो बिलो। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट ये ऑप्शंस आपको इधर पे नजर आएंगे। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 1 के नीचे रो को इंसर्ट करना है, तो 1 के नीचे रो को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिलो वाला ऑप्शन है ये, तो इस पर क्लिक करूंगा तो होते जाएगा। अब एक साथ मुझे बहुत सारी रो को ऐड करना है, नीचे बहुत सारी डालना है, तो जस्ट क्लिक करते जाऊंगा, ऐड होते चले जाएगा। प्रीवियसली मैंने जो बताया था एक दूसरा तरीका, वो कैसा था कि राइट क्लिक करके इंसर्ट करो इधर पे, तो एक ये ऑप्शन इसका इधर ही पे अवेलेबल है। तो बार बार हम लोग राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके वही सेम ऑप्शन है,
तो सेम ऑप्शन है, तो जस्ट इधर पे आपको दिख रहा है अवेलेबल है लेआउट में ही, जो भी नंबर ऑफ आपको रोज को इंसर्ट कराना है वो आप कर सकते हो इससे। तो ये सिर्फ रोज को ही इंसर्ट अबव बिलो नहीं है, बाजू में कॉलम का भी दिया हुआ है। अगर कॉलम भी तुम लोग को कहीं पे चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल ये रिमार्क के बाजू में एक और कोई कॉलम चाहिए था आपको, तो यहाँ पे इंसर्ट राइट में जाके आपके रिमार्क के बाजू में कॉलम आ जाएगा, ये इधर पे आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस इधर पे ऊपर अवेलेबल है, दिखेगा आपको। दूसरा, और भी अगर कोई सेल को स्प्लिट करना रहता है आपको, स्प्लिट, तो स्प्लिट करने का ऑप्शन जो बताया था मैंने उस टाइम पे, राइट क्लिक करके यहाँ पे भी अवेलेबल है। जैसे इसको अभी कितने में पार्टीशन करना है अपने को, 2 कॉलम करना है, तो ये वैसे रहने दो, 2 कॉलम में पार्टीशन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी ये सेल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग अलग 2 सेल में बढ़ गया। स्प्लिट का मतलब ये। तो ये सारा ऑप्शन इधर पे दिया हुआ है। अगर टेबल को स्प्लिट करने का है, तो टेबल को स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट टेबल ऑप्शन है, क्लिक कर दो, टेबल ही अलग हो गया, सेपरेट हो गया, स्प्लिट टेबल। बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो स्प्लिट टेबल से अपना ये टेबल भी क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एवरीबॉडी गेटिंग ना? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके। फिर इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे नेक्स्ट और क्या चीज़ देख सकते हैं इधर पे। नेक्स्ट आप लोग ये चीज़ इधर पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये अंडरस्टैंड कर सर सकते आवाज हैं। हाँ, हेलो, क्या हुआ? कितनी आ रही है? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मेरी? हाँ सर। सर मुझे तो आपका आवाज ब्रेक बहुत हो रही अच्छा आ सर, रहा है, ब्रेक लेकिन हो रही उनका आवाज। नेटवर्क कैसे रहेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी क्लियर है ना? यस सर। अब इसके अलावा भी और भी क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखो इधर पे, कि हम लोग को सेल साइज को अगर हम लोग को अलग करना है, सर सेपरेट करना आवाज है। नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, सर आ रहा है, वो बाइक को नहीं ले रहा, इसका नेटवर्क का इशू रहेगा सर। वही ना, हाँ नेटवर्क पर। भाई तेरे वहाँ आपका आवाज इशू पूरा है। क्लियर है? यस सर। वही ना, एक जन बोल रहा है अभी तो आ रही है ना बराबर, अब तो कुछ अटक अटक रहा अटक नहीं के है आ ना? रही है आपकी आवाज। कोई प्रॉब्लम हाँ सर आ रही है। नहीं, उनको बोलो ना रिस्टार्ट करने को मोबाइल। नेट हाँ, का उनका इशू रहेगा। प्रॉब्लम होगा भाई, आपका प्रॉब्लम होगा, मेरा तो बराबर चल रहा है, सब कुछ सुधर में आ रहा है। ठीक है, भाई बाद में अपना सर इस पे सेंड करते ना गूगल पे, उधर जाके देख लेना। हाँ वही ना, गूगल क्रोम में मैं सेंड कर दूंगा तो सुन लेना। ठीक है, चलो ठीक है। अभी इधर पे देखो, इधर आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अभी इधर पे क्या है, नेक्स्ट अभी हम लोग को अगर कोई सेल की रो या अपना हाइट या विड्थ चेंज करना है, उसकी साइज वगैरह चेंज करना है, तो ये सेल साइज करके ऑप्शन इधर पे दिखेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ये सेल जो है इसकी रो वगैरह, इसकी हाइट वगैरह चेंज करना है, मुझे इसकी विड्थ, हाइट और विड्थ वगैरह चेंज करना है, तो कैसे चेंज करूँगा मैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है, जितने के अमाउंट से आपको एडजस्ट करना है वो इधर से आप इधर पे चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ कब इम्पोर्टेंट होती है, जब आपको कहीं स्पेसिफाई करके दिया हुआ रहता है कि भाई हर सेल की साइज इतने हाइट की होना चाहिए, इतने विड्थ की होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में जाके आप इधर से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जो अमाउंट में आपको एडजस्ट कराना है वो अमाउंट के एडजस्ट करा के आप इधर पे उसको एडजस्ट कर सकते हो। यानी तो फॉर एग्जांपल अभी क्या करना होता है आपको, कभी कभी एक ही साइज जैसा करना होता है, कॉमन कॉमन साइज। कॉमन साइज कैसा करेंगे अभी हम लोग? अगर कॉमन साइज के जैसा करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? कॉमन साइज के लिए करना क्या पड़ेगा हम लोग को? पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और पूरे कॉलम टेबल को सिलेक्ट करके जो अमाउंट में आपको करने हैं वो हिसाब से आप कर दो। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जो मुझे हाइट रखने का है वो हाइट रखूँ मैं, 0.5 की हाइट रख दिया। कॉलम की कौन सी हाइट रखना है, जो है कॉलम की हाइट रखना है वो रखो, कॉलम की विड्थ जो रखना है, ऐसे।
सो इन दिस वे, इन दिस पैटर्न, ये पैटर्न के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना एडजस्टमेंट पूरा कर सकते हो कि सेल की साइज वगैरह जो आपको फिक्स करना है, कैसे रखना है, इधर पे एडजस्ट कैसे करने का है। तो सेल की साइज वगैरह एडजस्ट करने का इधर पे ऑप्शन आपको इधर पे नजर आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर सेल की अपनी साइज जो अमाउंट में हम लोग एडजस्ट करना है, वो चीज़ को इधर पे हम लोग सिलेक्ट करके उसकी चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा आपको एक ऑप्शन इधर पे ये चीज़ समझाना है, ये सेल साइज के बाजू में एक ऑप्शन आपको नजर आएगा अलाइनमेंट का। नाउ ये अलाइनमेंट का ऑप्शन क्यों यूज किया जाता है, आपको तो पता है, जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट वगैरह कैसे चेंज करना है, तो ये चीज़ इधर पे आपको नजर आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो आपके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, वो टेक्स्ट किधर पे लिखे हुए हैं, एकदम टॉप में और सेंटर में। और आपको अगर फॉर एग्जांपल अभी कोई टेक्स्ट आपको एकदम मिडिल में दिखाना है, लिख के दिखाना है, तो आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको एंटर करोगे, तो एंटर करोगे तो आपको इधर पे नजर आएगा, और इधर पे करोगे एंटर तो नीचे नजर आएगा। तो इसका प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसा किया जाए, प्रॉपर तरीके से किधर पे एडजस्ट करें, तो ये सारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस इधर पे नजर आएंगे, ये ऑप्शन में नजर आएगा। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था टॉप का सेंटर, तो इस पे क्लिक करूंगा तो टॉप के सेंटर में वो एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट। यानी तो मुझे मिडल के सेंटर में चाहिए, तो मिडल के सेंटर में ये एग्जैक्टली इधर पे आ जाएगा। तो एक साथ अगर आपको सब चीज़ को लेके आना है, तो आप सारे सेंटर्स को क्लिक कर दो, जो अलाइनमेंट में आपको रखने का वो अलाइनमेंट में रख दो, क्लिक कर दो ओके। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका टेक्स्ट पूरे टेबल में नजर आएगा, जो सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग को एडजस्ट करना है। तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको अगर अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट वगैरह करना है, प्रॉपर रखना है, तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाके आप अपने चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो, दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। तो अलाइनमेंट में आपको जाके अपना टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो पाएगा, नजर आएगा इधर पे। फिर इसी के बाद मार्जिन के बारे में समझाया था कि सेल के अगर कोई मार्जिन भी आपको डायरेक्टली चेंज करना है, तो कर्सर पर आप क्लिक करके इस तरीके से डायरेक्टली मार्जिन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस सेल की डायरेक्टली मार्जिन इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। जो भी सेल की मार्जिन वगैरह आपको प्रॉपरली एडजस्ट करना है, तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर के हेल्प से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी सेल की मार्जिन वगैरह को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इधर पे। ना आफ्टर दिस, फिर इसके बाद हम लोग को क्या चीज़ इसमें अंडरस्टैंड करना है, जो चीज़ भी सिलेबस पे दी हुई थी वो सारी चीज़ आई थिंक हम लोग ने एडजस्ट कर चुके हैं। एडजस्ट कॉलम स्पेसिंग, कॉलम विड्थ्स, तो जो चीज़ थी हम लोगों को वो सारी चीज़ हम लोग किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको कोई चीज़ डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप डायरेक्टली वो रो को सिलेक्ट करो और डिलीट सेल्स में जाओ। डिलीट सेल्स में अगर फॉर एग्जांपल ये 3rd नंबर की रो आपको नहीं चाहिए, तो एंटायर डिलीट एंटायर रो कर दो, वो रो नंबर डिलीट हो जाएगा आपका, वो सारे के सारे का रो पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इधर पे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब लोग को? यस सर। क्लियर हो रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके। फिर इसके बाद अभी आपका क्या बचता है इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग ने आई थिंक सो सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुकी है। जितनी भी चीज़ें हम लोग को दी हुई थी वो सारी चीज़ें हम लोग ने शायद पूरी चीज़ें को कंप्लीट की है। तो आइए वापस से रिमाइंड करते हैं हम लोग ने क्या क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंडरस्टैंड किया, सीखे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम लोग ने जो स्टार्ट किए वो बेसिक से स्टार्ट किए कि किस तरीके से फॉन्ट का टाइप, साइज, कलर वगैरह चेंज किया जाए, कौन सा बोल्ड, कौन सा इटैलिक, ये सारी चीज़ को अंडरस्टैंड किए। और डिफरेंट लोअर केस, अपर केस, मतलब स्मॉल लेटर, अपर लेटर, वो सारी चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया कैसे चेंज करते हैं। फिर आफ्टर दैट हम लोग ने कुछ एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कुछ डॉक्यूमेंट बनाने तो उसमें एडिट कैसे करना है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेके आने का, जो टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाता है, कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे होता है,
और किस तरीके से अगर कोई पिक्चर वगैरह हम लोग को इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो पिक्चर को कैसे लेके आएंगे, पैराग्राफ में स्पेसिंग कैसे किया जाता है, लाइन के बीच में स्पेसिंग कैसे करने का, और जो ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस वाला, अगर कोई चीज़ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज़ होती है तो उसको किस तरीके से फाइंड करके रिप्लेस किया जाए कि वन टाइम में, तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन था उसके लिए, उससे रिलेटेड। फिर इसके बाद हम लोग ने अंडरस्टैंड किए थे बुलेट्स वगैरह किस तरीके से दिया जाता है नंबरिंग करने के लिए, पेज बॉर्डर कैसे इंसर्ट करने का है, बॉर्डरिंग ऑफ दी पेज, और मार्जिन्स वगैरह पेज की कैसे एडजस्ट करें, ये देखे थे। फिर इसके बाद लेआउट ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरीके से उसका लेआउट चेंज करने का डॉक्यूमेंट का, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रखना है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में रखना है वो देखे, पेज नंबर देना है वो भी देखे थे हम लोग ने डॉक्यूमेंट में, और हेडर एंड फुटर, जो ऊपर हेडिंग चाहिए रहता है वो किस तरीके से हेडिंग में लेके आना है, नीचे की तरफ कुछ फुट नोट में दिखाना है तो फुटर कैसे लेके आने का वो देखे थे हम लोग ने। फिर इसके बाद हम लोग ने एक्स्ट्रा चीज़ जो देखे थे, पेज को ब्रेक कैसे करें और उस पेज में डेट और टाइम को कैसे लेके आए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी अंडरस्टैंड किया कि स्पेशल सिम्बॉल्स वगैरह कैरेक्टर को कैसे लेके आने हैं। जैसे आपके मैथ्स के सिम्बॉल्स वगैरह आ जाते हैं, फिजिक्स के सिम्बॉल्स वगैरह आते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट में वो सिम्बॉल्स कहाँ से लेके आने का, तो इंसर्ट सिम्बॉल्स में जाके वो सिम्बॉल्स को लेके आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद अभी जो सेकंड लास्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए वो वर्किंग विद टेबल्स पे किए, कि टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करें और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह उसमें कैसे चेंजेस करना है, कैसे रो को हाइट को इंसर्ट करना है, एक्स्ट्रा रो और हाइट को, टेबल की साइज को किस तरीके से रिसाइज करें, उसमें कैसे कलरिंग वगैरह लेके आए। और आज के लेक्चर में हम लोग ने देखे स्पेशली दो ऑप्शंस जो टेबल से रिलेटेड आपको नज़र आते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। तो टेबल में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न किस तरीके से देना है टेबल को वो देखे हम लोग ने, और इसके रिलेटेड हम लोग ने एडजस्ट किए कि इसके कॉलम और विड्थ की हाइट वगैरह को किस तरीके से चेंज किया जाए, सेल की कॉलम और रो की हाइट और विड्थ को किस तरीके से चेंज किया जाए। और जो ऑप्शंस हम लोग ने राइट क्लिक करके देखे थे वो सारे ऑप्शंस आपको लेआउट सेक्शन में नज़र आएंगे, दिखेंगे, वो चीज़ को हम लोग ने यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड किए। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ इससे रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड समझ में आई होगी। डेफिनेटली आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो मैं जो भी इसके रिकॉर्डिंग्स है वो आप लोग तक शेयर कर दूंगा। नो डाउट जब तक आप लोग प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, हाथ में नहीं करेंगे, आपको एकदम एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आप लोग तक शेयर कर देता हूँ, तो जब आपके पास कंप्यूटर आएगा, पीसी सामने होगा, तो सारी चीज़ को जब आप एक्चुअल जब डॉक्यूमेंट बनाने बैठेंगे तो वो चीज़ का बेनिफिट फिर वहाँ पे नज़र आएगा, वो चीज़ को आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ को यूज़ करना है और उसको एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आई थिंक ये चैप्टर से रिलेटेड आज के लेक्चर में मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। माय सेकंड यूनिट इस तरीके से यहाँ पे मैं अपने सेकंड चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूनिट 2 को यहाँ पे एंड करता हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर, दैट इज स्प्रेडशीट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझी रहेगी, कोई चीज़ में डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो डेफिनेटली आप लोग पूछो, मैसेज करो मुझे।